سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے اور 150 ابواب پر یہ جو کتاب ہے مشتمل ہے اور 111ویں زبور کی 10ویں آیت میں سے جو حوالہ پڑھا گیا یہاں پر جو بادشاہ ہے داؤد بادشاہ وہ خداوند کی حمد کرتا ہوا بیان کر رہا ہے کہ جب حکمت کا آغاز اس وقت ہو جب خداوند کا خوف ہمارے اندر ہو اور جب خداوند کا خوف ہمارے اندر موجود ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کی ستائش کریں گے اس کے کلام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بائبل مقدس کے ایک بہترین مفسر سے پوچھا گیا کہ جناب اگر آپ کو ایک جزیرے کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور آپ کے پاس یہ چوائس موجود ہو گیا بائبل مقدس کا ایک حصہ لے کر جا سکتے ہیں کون سی کتاب کو لے جانا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا زبور کی کتاب. کیوں کہا؟ کیونکہ زبور کی کتاب کے اندر بائبل مقدس کی تمام کتابیں اس نے لکھا لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں پر اپنا پرانے نظرانے کے اندر رکھتی ہے. یہ ایک ایسی شخص کی زندگی کا ایک مفصل خاصہ ہے اور راستہ بازی کا ایک ایسا بھید اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کی بچپن سے اس کی لڑکپن سے اس کی جوانی کے اس کے دکھ اس کی مصیبت اس کی تنگی اس کی شکر گزاری اور جب وہ دکھوں میں تھا جس طرح اس نے خدا کو پکارا تو ایک مکمل گواہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبور کی کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہے کیونکہ بادشاہ کا اپنا سارا سیٹ اپ اور اس کا اپنا سارا پروسیس اور داؤد نبی نے اس کے بارے میں لکھا اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید جو زبور کی کتاب ہے اس کو داؤد نے لکھا لیکن داؤد نے نہیں آصف نے ایمان نے داتی نے اور دیگر ایسے بنی کورا نے اور دیگر ایسے خدا کے لوگ جنہوں نے زبور کی کتاب کو لکھا تاکہ اس کو جاننے والے بات کے سوال کی سن سے آپ مسئلے پر اس موضوع پر ہم غور کریں گے وہ ہے خداوند کا خوف. کیا ہے؟ خداوند کا. سب لوگ زور سے جواب دیں. کیا موضوع ہے؟ خداوند کا خوف. خداوند کا خوف. اب آپ سوچیں گے کہ میرے اندر تو خداوند کا خوف منگل لیکن کیا ضروری تھا کہ اس موضوع کو آج کی صبح لائے گا؟ سو آپ اب جانیں گے کہ خداوند کا خوف کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آپ جانتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں جانتے تو اور دوسرے اس پر عمل کریں. چار باتوں کو ہم جانیں گے. نمبر 1 خداوند کا خوف حقیقت کے اندر ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے وہ رکھتا ہے اس کا تعلق ہم دیکھیں گے. نمبر 2 ہمیں خداوند کا خوف کیوں ماننا چاہیے. کیا یہ ضروری ہے؟ اگر ہم خداوند کا خوف نہیں مانیں گے تو کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نمبر 3 جو لوگ خداوند کا خوف نہیں مانتے یعنی وہ بغاوت کرتے ہیں تو خدا کس طرح اپنی رحمت کے دروازے ان پر بند کرتا ہے اور شیطان کو پورا موقع ملتا ہے کہ جا کر ان کو تنگ کرے. اور چوتھی بات جو لوگ خداوند کا خوف مانتے تھے مانتے ہیں یا ماننے والے ہیں ان کے لیے خدا کے پاک کلام کے اندر کیا خوشخبری یا کیا نتائج جو ہے وہ لکھ چھوڑے گئے ہیں. تو پہلی بات ہمارے سامنے آتی تعارف اس کا. جب ہم اس کا لوگوں کے اندر ترجمہ دیتے ہیں خوف کا مطلب ہے دہشت کسی سے ڈرنا یا کسی کے روب کے نیچے آ جانا یا کانپنا کے الفاظ اور قرآن میں اس کے لفظ استعمال ہوا بائبل مقدس کی اصلاح کے اندر پرانے احترام میں خوف کے وہ ہے ویرا اور ویرا کا مطلب ہے کانپنا اور نئے احترام میں جو لفظ استعمال ہوا یعنی یونانی مطلب کے اندر وہ ہے بوکوفس اور اس کا مطلب ہے دہشت یا خوف کرنا یعنی کہ کانپنا خدا کی حضوری کے اندر آنا اور سجیدگی اختیار کرنا. سو پرانے احترام کی اصلاح کے مطابق اور نئے احترام کی اصلاح کے مطابق یہ ہے کہ سجیدگی کے ساتھ خدا کی بارگاہوں میں قدم رکھنا اور اسے ڈرنا اور اسے کانپنا اور یہ فرض نہیں کرنا کہ خدا ایک ایسا ٹروائی جس کے ہاتھ کے سٹک ہے یا لاٹھی ہے اگر ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو وہ ہمیں مانے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسپیکٹ خدا کی خوف کو ماننا اس کی رسپیکٹ کرنا اس کی عزت کرنا اور اس کی بات پر عمل و فعل جو ہے وہ کرنا ضرور ہے. اور رسولوں نے اپنے شاگردوں کو رسولوں نے پھر آگے اپنی کلیسیاؤں کو اور دیگر ایسے لوگوں کو اس بات کے بارے میں تلقین کی کہ تمہارے اندر خدا کا خوف موجود ہونا چاہیے. اور نئے احترام کے علاوہ پرانے احترام کے اندر بار بار خدا نے خوف کے بارے میں اعلان فرمایا. کس طرح ابراہیم کو خدا نے کہا تو خوف نہ کر. فداؤن نے کہا میں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا میں مر جاؤں گا تو فرشتے نے کہا خوف نہ کر تو مرے گا نہیں. پھر یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے میرے ساتھ بدی کی لیکن میں تمہارے ساتھ بدی نہیں کروں گا اس بات کے لیے خوف مت کرو. موسیٰ کو خدا نے جھاڑی کے اندر کہا تو خوف نہ کر. ہر آسان نہ ہوگا کہ مصریوں کے پاس جا کر بتا دے کس نے مجھے بھیجا ہے اور اس کا نام کیا ہے. میں جو ہوں سو ہوں اسی نے مجھے بھیجا تو خوف نہ کر. جشوا کو خدا نے کیا کہا خوف نہ کر. ہر آسان نہ ہو جہاں دکھے گا تیرے پاؤں کا تلوا وہ جگہ میں تجھے پھیروں گا. اور داؤد کے اندر خوف موجود تھا لیکن جب خدا نے اس کی رحمت کو دیکھا خدا نے اپنی رحمت کو اس پر برسایا تو یہ خوف اس سے جاتا رہا. خوف کی اصلاح سے 4 طرح کے خوف جو ہے وہ نظر آتے ہیں جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے. پہلا خوف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیک خوف, دوسرا غلامی کا, تیسرا انسان کا اور چوتھا جو ہے وہ روح والے کا ڈر یعنی کہ خوف کا ڈر. نمبر 1 نیک خوف کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں سے گزرے اور آپ کی ملاقات میں آپ نے کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھا ان کو بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے اور جو واپس لائے گا آپ اس کی ہیلپ کر سکیں تو آپ اس کی مدد کیجیے, ہے نیک خوف. دوسرا خوف ہوتا ہے غلامی کا اور غلامی کا خوف کب آیا جب آدم نے گناہ کیا تو جو گناہ کا بوجھ تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے اوپر موت آ گئی. سو انسان کو ڈر ہے موت کا اور غلامی کا اور گناہوں کا لیکن یسوع مسیح نے ہمیں اس گناہ سے اور اس غلامی سے رہائی بخشی ہے. تیسرا خوف ہوتا ہے انسان کا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں پر جاب کرتا ہے تو اس کی یہی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو لیڈر ہے میرا جو چیف ہے میں اس کی نظر کے اندر اچھا بنا رہا ہوں اور کسی نہ کسی طرح سے اس کی نظر کے اوپر عزت حاصل کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے برا بنائے, اگر وہ برا بنائے گا تو میری تنخواہ پر برا اثر پڑے گا. تو یہ ہے انسان کا خوف. اور چوتھا خوف جو ہے وہ خوف کا ڈر اور یہ خوف کی اسلامی کے اندر یہوہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو کہ روح رکھنے والا ہے, جو کہ ہمارے اوپر اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر یکساں چمکاتا ہے اور اپنا مینہ بھی دونوں پر برساتا ہے. سو ہم نے
नेक खौफ भी रखना है, गुलामी का खौफ हमें नहीं है। लेकिन रसूल रोमियो के खत के अंदर 13वीं बात के अंदर बयान करते हैं कि बस आला हुकूमतों के ताबिया रहो। ताबिया रहना है, डरना नहीं, इसलिए कि इंसान का डर, इंसान का खौफ जो है वो कहलाता है। और चौथा ये हुआ खौफ का डर, यानी कि रोक वाले का डर, जिसने हमारे नखरों के अंदर जिंदगी के दाम को भूखा है, उसी से हमने डरना है। तो दूसरी बात हमारे सामने आती है कि अब हम खुदा का खौफ माने, क्यों माने, इसकी वजह क्या है? अगर हम खौफ नहीं माने तो क्या होगा? मर जाएंगे? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप मर जाएंगे। किस तरह? अब याद करें जब खुदा की रसूल की नबूवत की गई कि देखो दाऊद की कौम पर फूट निकलेगी और यीशु के दरख्त में से एक शाख फूट निकलेगी जो कि जिसके ऊपर मसरत की, हिकमत की, खिर्द की और खुदा के खौफ की रूह मौजूद होगी। तो ये नबूवत यीशु मसीह के बारे में की गई थी कि जो मसीह मौऊद है, जो इस्राएल का बादशाह आने वाला है, उसके अंदर खुदा के खौफ की रूह मौजूद होगी। तो यीशु मसीह ने यहोवा के खौफ को माना, तो इसलिए हमारे ऊपर ये लाज़िम है कि हम भी खुदा के खौफ को माने। दूसरी बात, जब इब्तिदाई कलीसिया ने जोर पकड़ा तो यहाँ पर अंताकिया से और सामरिया के जो लोग थे, जब खुदा के पाक कलाम को पढ़ते सुनते समझते थे तो एक चीज उनके ध्यान के अंदर वो क्या था? खुदावंद का खौफ। और अमाल की किताब के अंदर इस बात के बारे में जिक्र मिलेगा कि जो कलीसिया थी वो खुदावंद का खौफ पाकर बढ़ती गई, उन्होंने जोर पकड़ा, कलाम तरक्की पाता गया। तीसरी बात, अब आप सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास रुतबे की बख्शिश हो, हमारे पास पाक रूह हो। तो पाक रूह हासिल करने का तरीका कार रोमियो के खत में रसूल ने बयान किया कि जो कोई उसके सामने आता है, रूह हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है? आहें भरता है, हमें लेप पालक होने का इख्तियार करते हैं, क्योंकि जितने ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी सबको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खौफ से, ना जिस्म की रूह से, ना इंसानी ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। तो खुदा उनका खौफ जब हम मानेंगे तो रूह उसकी बख्शिश जो हमारी जिंदगी के अंदर नाज़िल होगी। चौथी बात, जिस्मानी रूह के साथ साथ जो खुदा उनका खौफ है वो हमारे सामने एक हाथ बांध देता है। खुदा उनका खौफ हमारे डैन का काम करता है ताकि हम गुनाह के पास ना जाए, क्योंकि गुनाह के सबब से मौत जो है वो वाक़या होती है। तो जिस्मानी और रूहानी रूह से खुदा उनका खौफ हमें पाक करता है, इसलिए हमारे पर लाज़िम है कि खुदा उनका खौफ माने। पांचवी चीज, आपस में ताबियादार रहना भी हमारे लिए जरूरी है। इफ्सियों के खत के अंदर रसूल बयान करते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे के ताबिया रहो। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन ये अस्तवादी बंधन के बारे में लिखा गया है। और ठीक इसी तरह जब हम इसकी निगाह दूसरी तरफ से देखें तो यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। तो जो कलीसिया का सर है, जब उसने खुदा का खौफ माना तो हमें भी इस बात के जरिए कि खुदा का खौफ माने। और ये नहीं समझना कि खुदा हमें मार देगा या खुदा हमें डरता, बल्कि एक रिस्पेक्ट के तौर पर खुदा का खौफ मानना है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल पर हम गौर करते हैं कि एक शख्स का बच्चा है और वो सारा साल नहीं पढ़ता और बुरे ग्रेड के साथ जो फेल होकर वापस आता है तो उसका बाप उसको मारेगा। अब अगले साल उसके ऊपर दो तरह के असर जो है वो नजर आएंगे। एक असर ये होगा कि उसको पिछले साल की मार का डर होगा कि अगले साल मुझे मार ना पड़े, और दूसरा उसके दिल के अंदर ये सवाल होगा कि मैंने वाकई ही पढ़ना है। तो अगर वो नियत के साथ पढ़ेगा तो कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन अगर बाप की मार के डर के बारे में पढ़ेगा तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो आपने भी ये नहीं सोचना कि हम आलमी नवाज से बच जाए, ये दोस्त में जाना है, हमने इसलिए खुदा का खौफ माना, बल्कि कहां से? दिल से माना है। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। यही तौबा का सबसे बड़ा हुक्म जो हमें मिलता है। तो खुदावंद से मोहब्बत करना हमारे लिए लाज़िम है। और यूहन्ना तबागी के पास जब बपतिस्मा लेने के लिए दीगर लोग आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात कही, अरे सांप के बच्चों, तुमको किसने निकाल दिया कि आने वाले गजब से भागो। गजब से नहीं भागना, बल्कि दिल के अंदर रिस्पेक्ट करके खुदा का खौफ मानना। खुदावंद क्या कि सारी दुनिया पर घूमती है और वो देखता है कि दुनिया पर क्या क्या जो बातें वजूद के अंदर आती हैं। तो अगली बात हमारे सामने आती है वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बगावत की। तो बेसिक से भी लोग बगावत करें, खुदावंद ने खूबसूरत वादा था वो इनके लिए किया, और चार बातों पर मुश्तमिल था। वो वादा ये था, नंबर 1 मैं इनका खुदा होऊंगा, नंबर 2 ये मेरे लोग होंगे, नंबर 3 मैं इनके साथ रहूंगा, और नंबर 4 मैं उनके साथ चलूंगा। आप याद करें खुदा ने किसके साथ ये वादा किया था? खुदावंद ने किस कौम के साथ, किस बंदे के साथ, किस नबी के साथ ये वादा किया था? याद करें, बाइबल पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए। मूसा के साथ। और कोई जवाब दे। खुदावंद की कौम कौन सी है? खुदावंद की कौम कौन सी है? किसका सब जवाब दें। बनी इस्राएल कौन है? रब्बुल इज्जत की पाक जात ने उसी के साथ कलाम किया और उसके लिए कहा, नंबर 1 मैं इनका खुदा होऊंगा, नंबर 2 ये मेरे लोग होंगे, किसी और के नहीं होंगे, नंबर 3 मैं इनके साथ रहूंगा, और चौथी अहम बात के इनके साथ चलूंगा। साथ रहना और चलना एक अलग बात है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, आसमान जमीन का। एक झूठा दिलासा दिया जाता है कि हम आपके काम के अंदर बराबर के शरीक हैं या चल मैं आपके पीछे आता हूं, लेकिन खुदा ने क्या कहा? मैं इनके साथ चलूंगा। और वो किस तरह चला? दिन को बादल और रात को आग का
साथ साथ जरूरत पर क्या करता था, अपनी रहमत को बरसाता था। आप याद रखें कि कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र की गुलामी के अंदर मौजूद थी तो रब खुदा ने कलाम करके जा इनको वहां से निकाल कर ला और ये कलाम उनको बयान किया। अब जब उन लोग वहां से निकले तो पहले आप जानते कि फिरौन जो था वो मक्कर करता रहा 9 साल तक, उन्होंने कहा कि मैं इनको जाने दूंगा, लेकिन बाद में वो झूठ बोलकर मुकर जाता था। फिर इसके बाद 10वीं आफत आई, उसकी कुव्वत का पहला फल माना गया। उसके पहलौठे के जितने इसराइली थे, जानवरों के, चौपाओं के और इंसानों के, सारे पलौठों की जब मौत वाक़या हुई तो तब उसने कहा तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जब वो यहाँ से निकले तो फिर पहले कुलम के पास आए, आगे समंदर और पीछे फौज है। आगे क्या है और पीछे क्या है, फौज है। और फिर लोग कहना शुरू कर दिए मूसा तो हमें यहाँ पर क्यों लाया, लेकिन मूसा ने क्या कहा, खौफ ना करो, तुम आज इस्राएल के खुदा की निजात है देखोगे। और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और कौम बनी इस्राएल खुश्क जमीन के ऊपर से गुजर गई। और यहाँ पर आप देखिए ज़बूर 105 के अंदर इसकी तफसीर लिखी हुई है कि वहां पर जितने लोग वहां से गुजरे थे, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, वो ना बीमार थे, ना दुखी थे, ना तंगे थे, बल्कि सब क्या थे, खुश थे। और यहाँ पर ये बात पूरी हुई कि यहोवा राफ़ा अपने लोगों को शिफा देता है, बरकत भी देता है, रिहाई भी देता है और शिफा भी देता है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सारे बीमारियों से मुक्त थे, किसी के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी या कोई परेशानी मौजूद नहीं थी। अब इसके बाद जब वो यहाँ से निकले थे, फिर इसके बाद खुदा ने कहा कि अब मैं इनके साथ कलाम करूंगा, सो मूसा तू क्या कर कि इनको तैयारी करवा। और तैयारी करवाने का तरीका कार क्या था कि खुदा ने कहा 3 दिन पहले अपने आप को पाक करें और अपने आप को इतना पाक करना है कि जो अज़दवाजी बंधन है ये भी आपस में कायम ना हो और दूसरे में आपने अलैयदगी इख्तियार करनी है। और मूसा को सीना की पहाड़ी के ऊपर एक हद बांधे कि कोई शख्स अंदर या बाहर जाने की कोशिश ना करे, और जिस किसी ने इसकी हद को तोड़ा वो जान से मारा जाएगा और उसका खून उसके सारे के ऊपर आएगा, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है या चौपाया है। तो इस बात को पल्ले बांध ले। तो लोगों ने तैयारी की और खुदा बड़ा खुश था कि वो मुलाकात का ताल्लुक जो आदम की वजह से बात के अंदर टूट चुका था, एक बार फिर से वो सीना की पहाड़ी पर कायम होगा। लेकिन यहाँ पर हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि खुदा ने सबसे पहले लोगों के साथ कलाम किया, मूसा ऊपर गया और 10 अहकाम लेकर नीचे आया और आखिर कौम को बयान कर लोगों ने क्या कहा, मूसा हम डर जाएंगे क्योंकि हम खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते, क्योंकि इंसान खुदा की आवाज सुन के जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता है। फिर इसके बाद खुदा ने पर जोर डाल के खुदा ने कहा मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारा इम्तिहान किया और तुमने मेरा खौफ माना। तो कौम बनी इस्राएल ने खुदा का खौफ माना और खुदा उनको इस बात से खुशी हुई। अब आपने इस बात पर गौर करना है कि हमने भी कौम बनी इस्राएल वाला खौफ माना है या वो खौफ माना है जो कि हकीकती तौर पर हमारे अंदर हो। इन्होंने बनावटी खौफ माना था। किस तरह? जब उन्होंने इस खौफ को माना तो फिर यहाँ पर मूसा ने हारून को कहा कि मेरे साथ तू ऊपर चल। एक पास्टर को, एक खादम को, एक लीडर को खुदा ने कहा मूसा तू भी आ और अपने भाई मुकद्दस हारून को भी ऊपर लेकर आ। और ज़बूर 105 के अंदर इसको मुकद्दस मर्द कहा गया, इसको बरगज़ीदा शख्स कहा गया और कहा तू ऊपर आ मेरे साथ चल। लेकिन उसने कहा मैंने नहीं जाना, चट्टान बहुत ऊंची है, मेरे पाँव में चोट लग सकती है, मेरा जूता ठीक नहीं, मैंने अपने खानदान के पास रहना है, मेरी बीवी यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मेरे दोस्त यहाँ है, मेरे मिस्री दोस्त, याद रखें इस्राएल से इस्राएली नहीं बल्कि कुछ मिस्री भी निकल कर आए थे, मेरे वो दोस्त यहाँ है, मैंने उनकी शराकत को नहीं छोड़ना। और जब एक पास्टर ने खुदा की बात को नहीं सुना बल्कि कलीसिया को, अपने लोगों को खुश करने की कोशिश की, तो क्या किया, इन्हीं लोगों ने से मजबूर किया कि क्या बनाए, सोने का बछड़ा बनाए और फिर मजबूरन उसको उनकी बात को मानना पड़ा। और जब ये बात हो जनाब मूसा अहकाम इशरा लेने के लिए जा रहे हैं और खुदा उसके साथ कलाम कर रहा है, लेकिन लोगों ने अपने अंदर उस बात को पैदा किया और क्या कहा, 40 दिन और 40 रात गुजर चुके हैं, मूसा शायद मर गया होगा, भूख प्यास से मर गया होगा, पहाड़ से गिर गया होगा, किसी दरिंदे ने उसको मार दिया होगा, हम उसका इंतजार क्यों करें, आओ हम अपने लिए एक ऐसे खुदा का एहतमाम करें, एक ऐसे खुदा को तस्लीम करें जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम चूम सकते हैं और जिसके मुताबिक हमारे काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे रूट की किताब के अंदर आपको 20वें बाब से इसका आगाज होगा और आगे चलते जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि आज सुबह इसके लिए क्या होगी, ईद होगी। और खुदा का पाक-तरीन नाम जो पुराने अहदनामे के अंदर अब्राहम में मिलता है एलोहीम खुदा, और एलोहीम को उन्होंने इस बुत की जगह दे दी और कहा कि सुबह इसके लिए ईद होगी। और पुराने अहदनामे के अंदर 2500 से ज्यादा दफा ये नाम यहोवा की पाक जात के लिए इस्तेमाल हुआ एलोहीम, तो उन्होंने एलोहीम का जो लफ्ज है वो इसको दे दिया और क्या किया, शरारतें करना शुरू कर दी, मस्ती करना शुरू कर दी और उसके बाद नाचना शुरू कर दिया। सिर्फ किस लिए, एक पास्टर की वजह से, उसने खुदा की बात को नहीं सुना बल्कि लोगों को खुश किया। आज हमें भी जरूरत सच्चाई पर कायम रहे, न कि लोगों को खुश करें बल्कि आसमानी बात के साथ दिल लगाएं कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश तो मिट जाएगी, उसको राजी करेगा आसमान पर रहता है, जिस पर उसकी निगाह हो जाए वो कभी भी मरता नहीं। इसलिए क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए
अब इस बात को उन्होंने भूल गए और उन्होंने मना भी किया कि ना करो, लेकिन अब उन्होंने कहां उसकी सुननी थी। अगर वो खुदा की बात को उस वक्त सुनता तो शायद वो लोग बच जाते। और फिर क्या हुआ, जब मूसा ने ये हालात देखे, मूसा नीचे आया तो खुदा ने कहा अब जाकर देख तेरे लोग क्या हरकत करते हैं। पहले खुदा ने कहा ये किनके लोग होंगे, दूसरे नंबर पर क्या लिखा, किसके लोग हैं, वो मेरे लोग। सब जवाब दे, किसके लोग हैं, मेरे लोग हैं। लेकिन फिर क्या कहा मूसा, तेरे लोग हैं, जा के क्या कर रहे हैं। वो गया नीचे, बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर उसने देखा। चश्मा ने कहा मुझे तो ये बात महसूस होती है कि शायद कोई जंग लगी हुई है। मूसा ने कहा जंग की बात नहीं, यहाँ पर नाच शराबे की और भागने की मुझे आवाज आ रही है। जब वो नीचे गए तो उसने कहा, उसने सर पर हाथ रखकर कहा ये क्या बात है, और उसे रहा नहीं गया, उसने खुदा के काम को वहीं पर उनके सामने फेंक दिया और तोड़ दिया। और क्या कहा, तुम इसे काबिल नहीं कि खुदा के काम को देखने वाले बन सको, क्योंकि तुमने खुदा का खौफ नहीं माना, तुमने उस बदी को दोबारा किया। उस दलदल के अंदर वापस गए। और पतरस रसूल की इस बात की ट्रांसलेशन हमें मिलती है कि जिस तरह कुत्ता अपनी तह की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है, ये लोग भी वापस उसी तरह आए। अब मूसा ने जब इस बात को देखा तो फिर उसने काम इसरा को तोड़ दिया और उस बुत को भी उसने उल्टाया, उसको टुकड़े टुकड़े किया। और फिर वहां पर एक पार्श्व के गुनाह की वजह से, एक पार्श्व की नाफरमानी की वजह से इसने खुदा की बात को नहीं सुना, 3000 लोग जो थे वो मारे गए। किस लिए, उन्होंने बुत को बनाया, उसकी पूजा की। अब उन्होंने खुदा को भूल गए, अपने दिल में उसका खौफ है ना माना, उसके अजायबात को भूल गए जो उसने मुल्क मिस्र में किए। इन 4 बातों को भूल गए। मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनके साथ रहूंगा और उनके साथ चलूंगा। वो इस बात को भूल गए और उन्होंने बियाबान में बड़ी हिर्स की। उन्होंने कहा हमने क्या खाना है, गोश्त खाना है, हमने अच्छी चीजें खाना है। हाय वो हांडियां जो मिस्र में खाते रहे, हाय वो प्याज, हाय वो गंडे, हाय वो खीरे, हम तो मूसा यहाँ पर मर जाएंगे। तो खुदा ने क्या कहा, आज रात तुम खाना खाओगे। और क्या हुआ, रात को हवा चली और पूर्वी हवा से उड़ते हुए बटेरे वहां पर आए, उन्होंने सुबह उठकर खाना खाया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिरस की और क्या किया कि जानवरों को फौरन पकड़ा और जुबान अपने मुंह के अंदर डाला, उनका खून जो था उनके मुंह के अंदर गया और वहां पर क्या हुआ, वबा फूट निकली। सो वो फुड़फुड़ाए। खुदा ने उनकी दिली मुरादों को तो पूरा कर दिया और उनकी जानों को सुखा दिया। किस लिए, खौफ मौजूद नहीं था। सुलेमान लैमुएल बादशाह जिनके अंदर हिकमत की कमी मौजूद नहीं थी, हिकमत बहुत सारी थी, लेकिन एक बात से मार खा गए हो गया कि खुदावंद का खौफ। और फिर इंसान की किताब 10वें बाब के अंदर वही लिखते हैं, अब खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। सो हमें भी जरूरत है खुदावंद का खौफ माने। और जो ये 4 बातें खुदा ने उस जमाने में इस्राएल के लिए लिखी, वो आज हमारे लिए है। किस तरह यीशु मसीह ने बयान किया, ज़ल नबिश्वल बड़ी कली करवातून मन साहिल नबिश्वल, आसमान और जमीन टल जाए मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं, वो हमारे साथ है और हमारे साथ चलता है। आप गौर करें, जुमे को जजरा है, आप सब सलामत हैं, हमारा खुदा हमारे साथ है। आप कहीं जा रहे हो, आप देखें पिछले साल कितनी बुरी वबा कोविड-19, हम सब महफूज हैं, हालेलुया। वो हमारे साथ है, उसने हमें वबा से बचाया, क्योंकि बड़े का लहू जिसके ऊपर लगा है, मौत का फुर्ता ऊपर से गुजर जाता है। किसी हादसे से खुदा ने बचा के रखा, 7 दिन तक बचाए रखा, और आज देखिए 2021 हमारी जिंदगी के अंदर बख्शा। वो हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, दिल की मुरादों को पूरा करता है। किस लिए कि कलीसिया उसका खौफ माने और उसे डरे। यीशु जिंदा है, पांचवी बात हमारे सामने आती है कि वो लोग जो खुदा का खौफ मानते हैं, उनके लिए क्या जो गिफ्ट है, क्या जो चीज है वो खुदा ने रख छोड़ी है, उसके नतीजे हमारी जिंदगी के अंदर क्या है, वो आखिर होंगे खुदा का खौफ। पहली बात, बदी से अदावत पैदा करता है। नंबर 2, खुदा का खौफ गरूर और घमंड से नफरत पैदा करता है। नंबर 3, खुदा का खौफ हयात का चश्मा है। नंबर 4, खुदा का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। नंबर 5, खुदा का खौफ कभी उम्मीद है। नंबर 6, खुदा का खौफ औरत इज्जत और हयात बख्शता है। और नंबर 7, वाइस की किताब के अंदर इंसान का कुल्ली फर्ज यही है, खुदावंद से डरे और उसके हुक्मों पर अमल करे। तो पहली बात, जब हमारे अंदर खुदावंद का खौफ होगा तो हमारे अंदर ये 7 फल जो है वो नजर आएंगे। क्या? पहली चीज, हम बदी करने से डरेंगे और बदी से क्या पैदा होगी? कराहियत पैदा होगी, बदी से नफरत पैदा होगी कि यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी, मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा। तो खुदावंद का खौफ पहली चीज हमारे अंदर बदी से अदावत पैदा करेगा। दूसरी चीज, आज लोगों के अंदर गरूर भी है और घमंड भी है, दोनों बातें लिखी, गरूर और घमंड, ताकि कई लोग ये ना समझे कि मैं तो गरूर करता हूं, घमंड के बारे में नहीं लिखा। अपने हुस्न का, अपने रुपए पैसे का, अपने माल जान का, बैंक अपने बिजनेस का, किसी भी चीज का जो खौफ जो है वो हो सकता है। तो जब खुदा का खौफ होगा तो इंसान फरोतन जो है वो बन जाएगा और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को सर बुलंद करता है। अगर सर बुलंद होना है तो खुदा का खौफ माने। और दूसरी चीज क्या होगी? घमंड से
खात्मा पैदा होगा। तीसरी चीज हयात का चश्मा, और हयात का चश्मा क्या है? मरियम मगदलीनी जब वहां पर पहुंचती है तो फरिश्तों ने क्या कहा? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हयात का चश्मा कुबरिया की दाहिनी तरफ खड़ा है और उसी की वजह से आज हमारे पर भी हयात की बख्शिश जारी है। चौथी बात, उम्र की दराजी बख्शता है। ज़बूर 90 के अंदर लिखा है, खुदा हमको अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। हमारी उम्र की मयाद कितनी है? 70 वर्ष अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी जो मेहनत हो क्या है? मेहनत मुशक्कत और गम है, हमें इससे निकाले। तो अगर आप उम्र की दराजी चाहते हैं 70 या 80 वर्ष, जितना हमारे पास टाइम मौजूद है, उम्र की दराजी चाहते हैं तो खुदा का खौफ माने। पांचवी चीज हमारे सामने आ गया, कभी उम्मीद। दुनिया कहती है कि उम्मीद जो है वो दुनिया पर कायम है, लेकिन हमारी कभी उम्मीद क्या है? खुदा की रहमत क्या है? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। ये है कभी उम्मीद, खुदा उनके खौफ के मुताबिक। छठी बात, दौलत, इज्जत और हया। आज सबको दौलत चाहिए, इज्जत भी चाहिए और हया, जिंदगी भी चाहिए, और खुदा उनके खौफ के अंदर ये फार्मूला मौजूद है। और सातवीं और अहम बात, इंसान का कुल फर्ज 22 की किताब के अंदर लैम्बेल बादशाह इख्तिताम करते हैं, वो हर चीज बुरी है या भली है, अच्छी है या बुरी है, खुदा उसको एक दिन अदालत के अंदर लाएगा। अगर अच्छी की होगी तो ताज मिलेंगे, अगर बुरी की होगी तो उसकी सजा भी मिलेगी। स्वाइटली से इस बात पर गौर करें। असली कलाम हम सबके लिए है, खुदा फी ज़माना अपने लोगों के साथ कलाम करता है। दो रास्ते हमारे पास मौजूद है, एक आज मेरे वक्त पर जाता है और दूसरा नई यरूशलेम की तरफ जाता है। अब आपको सोचने करने किसकी तरफ इंतखाब करना है? खुदा उनका खौफ माना है, मैं कौन बड़ी इसराइल को याद रखें, जिसने वक्ती तौर पर तो खुदा के खौफ को माना और डर गए। डर के साथ नहीं बल्कि दिल के साथ रिस्पेक्ट करनी है खुदा की, उसकी बात को मानना है, उसकी बारगाहों के अंदर कदर करना है। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की या गुनाहों का कोई आपके कांधों पर आपको चैन से बैठने नहीं देता, तो खुशखबरी आप सबों के लिए है, यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले 21 साल पहले इसीलिए सलीब पर कुर्बान हुए ताकि उसके मार और कोड़े खान से हम सब लोग शिफा पाएं। तौबा करें, यीशु मसीह पर ईमान रखें और खुदा का खौफ माने और अपना नाम किताब हयात में दर्ज करवाएं। और खुदा की बंदा बयान करते हैं, वो क्या ही वक्त होगा फिर हम खुदा की मुकद्दस चेहरा को देखेंगे। मगर वो लोग जिन्होंने उसकी बात को नहीं सुना होगा, उस पर अमल नहीं किया होगा, उनके लिए होना और एक ऐसा बुरा इंतजाम जो है वो इंतजार करें जिसके मुताबिक वो खुद भी नहीं जानते कि हमारा क्या इलाम होगा। और आज जिस शिकायत को लोग देखकर उसकी परचेज करते हैं, उसकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में खुदा का पाक कलाम हमें बयान करता है कि उसका ये बुरा हल जो है वो किया जाएगा। जवान अपनी जवानी के याम अपने खालिक को याद कर, जबकि हनूज अभी पूरे दिन नहीं आए। जवानी के याम अपने खालिक को याद करें जब हमारे पास ताकत मौजूद है, और जब ये बुरे दिन आएंगे तो इंसान जो है बहुत तरह की बदी के अंदर मुबतला होगा और जिस्म की ताकत जो है वो जाती जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर पीसने वालियां हैं वो रुक जाएंगी और जो खिड़कियों से झांकती हैं वो दुदला जाएंगी और घर के बाद सब जाने लगेंगे, जोड़ा और लोग कुबड़े हो जाएंगे, हौस का चरख टूट जाएगा, खाक खाक से जान मिलेगी। स्वाइन की शेष बात पर गौर करें, खुदा की यीशु को कबूल करें। खुदा फी ज़माना अपने लोगों के साथ कलाम करता है, उसने अब्राहम के साथ कलाम किया, मैं तेरे सुलभ से कौम को पैदा करूंगा। वो कौम पैदा हुई और आज उसी कौम का एक इंसान हम हैं। यीशु मसीह ने बयान किया, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही अब तुम्हारे पास है, आ चुकी है। तौबा करें, यीशु मसीह को कबूल करें। अगर आप ईमान के साथ मर जाएंगे तो हम सबों के लिए खुशखबरी किताब मुक़द्दस के अंदर लिखी हुई है कि जितने मुर्दे यीशु मसीह के अंदर सोए हुए हैं क्योंकि खुदा खुद है, आसमान से ललकार मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसीबे के साथ है उतरेगा और पहले तो वो जो नसीबे मुए हैं वो जी उठेंगे। अगर तो आपने खुदा की बादशाही में जाना है और यीशु मसीह से वो ताज हासिल करना है, फरिश्तों की मान में रहना है, खूबसूरत लिबास हासिल करना है, स्वर्ग पर सुनहरा ताज हासिल करना है, तो आज ही तौबा करें, यीशु मसीह को कबूल करें, खुदा का खौफ माने और किताब हयात में अपना नाम जो है वो दर्ज कराएं और खुद उसकी बख्शिश हासिल करें। और दूसरी तरफ जो कुशादा रास्ता है उसके बारे में जवाब हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने बयान किया, मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा हूं। अपने ईमान पर कायम रहे और बिदात में अंदर से निकले और जितने लोग मुखालफत करते हैं उनका डट कर सामना करें, क्योंकि यहोवा हमारा छंडावर है, वो भी हमारा हरावर है। खुदा ने अपने लोगों के साथ कलाम किया है। आज कलीसिया बार-बार हम सबके लिए यही खुशखबरी है, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की तो तौबा करें। सो खुदा के यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप के मौजूद आप सबके साथ हो। सो आज कलीसिया क्या करेंगे? आज किस मौके किस मौजू पर गौर किया कलीसिया? सब जवाब दे। क्या था? चार बातों को देना। नंबर 1 तारुफ। खौफ का मतलब क्या है? वहशत, दहशत, यहाँ कामना। इब्रानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ गया है वीरा, और यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खौफ। चार तरह के खौफ को हमने देखा। फिर दूसरी बात हमारे सामने आती है, हमें खौफ क्यों आती है? नंबर 1 यहोवा तबारक तआला की जो पाक रूह खुदावंद के खौफ की, मसरत की और हिकमत की रूह है वो यीशु मसीह के अंदर मौजूद थी और हमें यीशु मसीह के हमशक्ल बनना है, दुनिया की हमशक्ल नहीं बनना। दूसरी बात, इब्तदाई कलीसिया ने खुदावंद का खौफ माना। खुदावंद का खौफ हमें जिस्मानी और रूहानी रूही से पाक करता है। खुदावंद के खौफ के मुताबिक ताबेदार रहना है। तीसरी बात,
किन लोगों ने बगावत की? बगावत से पहले खुदा ने खूबसूरत ऐलान किया। वो ऐलान क्या था? नंबर 1, मैं इनका खुदा होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे, किसी और के नहीं होंगे। नंबर 3, मैं उनके साथ रहूंगा, और नंबर 4, उनके साथ चलूंगा। लेकिन उन्होंने बगावत की और खुदा उनका खौफ नहीं माना और 3000 लोग वहां पर मारे गए। फिर इसके बाद हमारी जिंदगी में नताइज क्या आते हैं? नंबर 1, पति से अदावत पैदा होगी। दूसरी बात, घमंड का खात्मा होगा। तीसरी बात, कभी उम्मीद होगी। चौथी बात, उम्र की दराजी होगी। पांचवी बात, हयात का चश्मा होगा। छठी बात, दौलत, इज्जत और हयात मिलेगी। और सातवीं अहम बात कि इंसान का कुल्ली फर्ज यही है कि वो खुदा का खौफ माने। सो खुदा की रसूल का फजल और खुदा बाप के ऊपर और रूह की शायद सबके साथ हो। नूरों का बाप मुझ समेत आप सब पर इबादत फजल करे कि आपके पैगाम को सुनने समझने के साथ हम सब लोग इस पर अमल करने वाले बन सके। खुदा यीशु के नाम में हालेलुया। स्वयं अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।